Okay, so far we have discussed these things: HTML, CSS, PHP, and JS in this order. HTML is about structure of the web page. Second is CSS. This is about designing of a web page, or you can say beautifying a page, something like this. When we are talking about PHP, it's for the backend, right? And it will also use database, right? You will write a PHP script so that you can connect to the database and write your logics, right, and present that to the user. Then we have JavaScript. It is basically for the interaction or interactivity purpose, right? So these three things, HTML, CSS, and JS, these are part of front end. You can also say that this is client side. What do you mean by client side? For these things, we don't need any server. Right? But for the PHP part, which is a backend, you can also say that it is server side language. For this, we need some server, and for that we have installed XAMPP, right? You can also install other things, or maybe you can install like Apache and MySQL server. You can install these differently, right? Or you can just install XAMPP and you will get everything in one piece. Clear? So it's better that you install XAMPP and everything is easy for you. So we have already discussed these things. In previous two classes, we talked about JavaScript. Right? HTML and CSS is important, but not that important as we have PHP and JS. That's why I will be focusing more on PHP part and JavaScript part. Right? So in previous classes, we talked about JavaScript. Basically, we talked about some boxes like prompt box, confirm box, and alert box, and they're working also. Other than this, we talked about few important functions like getting element by ID, class, or tag name. This was very important thing, right? So what we can do, for example, in previous few classes, what we did, suppose we have a paragraph of text and we have another paragraph. You can call this P1 and you can call this paragraph P2. And suppose this paragraph has some text, maybe PHP, and second has text JavaScript. So the example we took was swapping these paragraphs, right? We use JavaScript to swap the data of these two scripts or these two paragraphs. Clear? So for that, what we can do,
we have assigned some IDs. You can say that ID assigned to the paragraph 1 is P1 and ID assigned to the paragraph 2 is paragraph 2. So what is the way of getting an element? We use function like get element by ID, and then we pass ID here. So we are passing P1. It means it will give us P1 element. Everyone know this? Everyone have any idea about this? Okay, good. Similarly, we will get P2, but in that case, we will pass P2 here. This is just algo kind of thing that I am telling you, right? Next, what you can do, you can take text content of P1, and similarly you can get text content of P2 like this, and then swap these. Maybe using a third variable, you can take a temp variable and swap these text. So this was example 1. Other than this, we made a circle, and that we designed from a div, provided some border radius so that a div becomes a circle after that. So it's all about border radius property, and using this border radius property you can create a square, make that circle, or if it is a circle you can make it a square, right? If it is a div actually. So we are styling div only. Then what we did, we clicked on this, and on every click we are changing the color of this circle. So this was our task. Clear? So we did this. After that I gave you some examples, or I can say I gave you some homework. Like, you have two divs. Here is image 1 and here is image 2. You will have a button here with the name swap. You have to click on this button. Image 1 will go to div 2 and image 2 will come to div 1. किसी ने किया ये क्वेश्चन किया? किसी ने नहीं किया? आसान है, जिसने नहीं किया वो सुन लीजिए. जब आप इमेज टैग बनाते हैं तो you start with img and it has a attribute with the name source, right? तो एक्चुअली आपको करना क्या, you have to change the source. जब आप पैराग्राफ पर टेक्स्ट स्वैप कर सकते हैं, you can also change the text of source. इजी है, तो मुश्किल काम तो है नहीं. देखो मुश्किल लेकिन तब हो जाएगा अगर आप करेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ देखेंगे. और जब मैं आपसे पूछूंगा आप सोचेंगे इस टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम नहीं होगा. वो उस टाइम तो वही कोड रन नहीं होता जो हमने खुद किया होता है पहले से. जब कोई पूछता है तो जो अगर आपने पहले से नहीं किया होगा तब नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे कोड हैं, इनको बनाते रहिए. असाइनमेंट मैंने दिया है, उसको गिटहब पे आप सबमिट करते रहिएगा. एक और ऐसी एग्जाम्पल था, वो इसी पार्ट से रिलेटेड है. हमारे पास एक बल्ब है जो कि कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है. ठीक है, वो भी एक बटन के बेसिस पे. एक बटन है जो स्विच है आपके पास, स्विच ऑन ऑफ. आपने उसको क्लिक करना है तो बल्ब ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा. ठीक है, तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे भी हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक ऑन वाली एक ऑफ वाली. आपको सोर्स ही चेंज करना है. अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं. अगर आपने स्वैप वाला ऊपर कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है. इस चीज का ध्यान रखना, जो बल्ब आपने लिया वही उसी की 2 बार फोटो ले लो बस. ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, खुद खींचने की जरूरत नहीं फोटो. ठीक है, ऐसे नहीं कि खुद ही कैमरा लेके घूम रहे हो कमरे में, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. फिर घर वालों को बोल रहे सर ने हमें काम दिया इसलिए हम घूम रहे हैं, ऐसा
तो टाइम पास का तरीका अच्छा है, वैसे यूज कर सकते हो इसको कभी कभी अगर बोर हो जाओ बैठे बैठे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको इमेजेस मिल जाएंगी, उनको स्वैप करो या उनको सोर्स बदलना है बस, ठीक है। तो सोर्स बदलने से आपका काम हो जाएगा। ऐसे हम कुछ चीजें करके भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं इतना करवा चुका हूं, ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपकी आंखों में मुझे दिख रहा है कि लेक्चर देखा नहीं है अभी तक कई लोगों ने, ठीक है। तो और जिन्होंने देख लिया उनका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ओवरव्यू। कोड नहीं बता रहा हूँ बट आपके लिए थोड़ा इतना सही है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास वो थी जेसॉन की। जब हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने एक तो एरे की बात भी की थी और फिर ऑब्जेक्ट्स की बात भी की थी। दो चीजों की बात की थी हमने जब हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, दो चीजों की बात की थी। तो एरे बेसिकली हम साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका एक रीजन है। जैसे एरे आप समझ लीजिए ये है 1 2 3 4 एंड इस एरे का नाम ए है, तो इसको आप इंडेक्सिंग से एक्सेस करेंगे। एरे में क्या होता है, एरे में क्या होता है, नंबर्ड इंडेक्स होता है, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर्ड इंडेक्स होते हैं क्या, नहीं, हम इसको नेम्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। नेम्ड इंडेक्सिंग का मतलब ये है जैसे कि मुझे आपका रिकॉर्ड तैयार करना है स्टूडेंट्स का सभी का, तो मैं कैसा लिख सकता हूं, एक रोल नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका नेम, ऐसा एक पेयर बनाऊंगा मैं, और ऐसे मल्टीपल पेयर बनते जाएंगे। इसको आप अगर पाइथन की टर्म्स में कहो तो आप इसको डिक्शनरी भी बोलते हो। पाइथन पढ़ी आप लोगों ने, ठीक है, जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए ये डिक्शनरी हो गई, जिन्होंने पीएचपी पढ़ी है उनके लिए एसोसिएटिव एरे हो गया। हैशिंग नाम की चीज भी आपने सुनी होगी, ठीक है। हैशिंग में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक की होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो की वैल्यू पेयर का एक ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जैसे रोल नंबर 1 नेम ए, रोल नंबर 2 नेम बी, और कोई जरूरी नहीं कि नेम ही हो, एक बड़ा रिकॉर्ड भी हो सकता है, यानी कि वैल्यूज में आप पूरा एरे भी डाल सकते हैं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, और जितना चलना है चलते रहो आगे। तो बहुत जबरदस्त रिकर्जन भी हो सकता है कि कहाँ तक जाते रहो आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको दे सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और आपको रिकर्सिव वे में अंदर तक जाना है, वहां से रिकॉर्ड फेच करके लेके आने हैं, ठीक है। जब आप इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, अगर आप जेसॉन डेटा पे काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो जेसॉन डेटा से आपका सामना जरूर होगा, तो इसीलिए मैं पहले आपका सामना करवा दे रहा हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें ट्विटर का जो डेटा है वो फेच किया हुआ है मैंने, जेसॉन फॉर्मेट में है, एंड उससे आपको कुछ डिटेल्स फेच करनी, मैं सब नहीं करवा रहा हूँ आपसे, और तभी मैंने आपको ज़्यादा टाइम भी दिया है। अगर आप ये सोचो कि उस दिन करना स्टार्ट करेंगे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम दिया। अगर आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ कम क्वेश्चन दे रखे हैं और आसान भी दे रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम क्यों दिया है, तो ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि होगा नहीं वो। अगर आप उसी दिन करने की सोचेंगे तब नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप उसको पहले से ट्राई कीजिए, जो भी दिया हुआ है उसमें क्या है, एक फाइल दी हुई है और उसके अंदर है ट्विटर का डेटा, वो है जेसॉन फॉर्मेट में, और आपको करना क्या है, एक प्रोग्राम बनाना है और इसको सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बट सिर्फ इतना नहीं कि सीएसवी में कन्वर्ट करना है, सीएसवी में कुछ स्पेसिफिक डेटा फेच करके लाना है आपको। ऐसा हो सकता है कि जेसॉन के अंदर मान लीजिए 100 डेटा पॉइंट है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सीएसवी में आपको सिर्फ 10 डेटा पॉइंट चाहिए। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे यूजर है और यूजर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है ट्विटर पे ना, जेसॉन में जो रॉ डेटा हमारे पास आया है, हो सकता है यूजर के फॉलोअर्स का काउंट हो, ठीक है, उसने कितनी पोस्ट लाइक की हैं, कितने लोगों ने उसकी पोस्ट लाइक की हैं, ये बहुत सारी हो सकती हैं, वो वेरीफाइड है कि नहीं है यूजर, राइट।
जो भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इस पर्टिकुलर ट्वीट पे उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। बट हो सकता है मेरे को सारी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ कुछ चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि यूजर का अकाउंट कब क्रिएट हुआ था, यूजर का यूजर नेम क्या है, ठीक है, इतनी चीजें चाहिए मुझे बस। वो लिखी हुई मैंने क्या क्या चाहिए, ये दो नहीं चाहिए और भी चाहिए, बट क्या क्या चाहिए वो लिखी हुई है उसमें, कि यूजर का डिस्क्रिप्शन चाहिए कि नहीं है, वो वेरीफाइड है कि नहीं है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको लेके आनी है वहां से, डेटा से, और फिर उसको सीएसवी में कन्वर्ट कर देना है। तो सीएसवी में फिर आपके लिए आसान रहेगा देखना कि डेटा इस फॉर्मेट में है, अब हम आगे उस पर कुछ काम कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? एक सेकेंड है। हेलो जी सर बोलिए। बच्चों सेक्शन ए के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सेक्शन ए थोड़ा हाथ उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है सर। हेलो हेलो, हाँ सर 12 बच्चे हैं। ठीक, ओके सर, वेलकम। ठीक है बच्चों, तो इतना सबको क्लियर हुआ कि क्या करना है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया है अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमें बेसिकली डिस्कस करनी है आज। एक तो हमें करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको डॉम भी बोलते हैं। इसके साथ साथ में हम एक दूसरी चीज भी डिस्कस करेंगे जिसको बॉम बोलते हैं, तो फटने वाला नहीं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिमिलर सा होता है वो, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। जब हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो ब्राउजर पूरा है हमारे पास, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कौन सा वाला पार्ट है? जैसे मैं ब्राउजर ओपन करके देखता हूं, तो ये जो ब्राउजर है ये पूरा है, ऊपर से लेके यहाँ देखो और नीचे तक पूरा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन सा है? ये वाला पार्ट, सिर्फ जो भी है व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको इतना, इसमें यूआरएल भी नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी इसमें नहीं आएगा। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल एक पूरा हो गया, और उसके अंदर कुछ और चीजें हैं, समझ रहे हैं? तो इसको अभी डिस्कस करते हैं जरा। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें बेसिकली, तो जावा स्क्रिप्ट जो बेसिकली बना था वेब ब्राउजर्स के लिए ही बना था, लेकिन आज की डेट पे ऐसा नहीं है, इवॉल्व हो गई है जावा स्क्रिप्ट काफी, अब और भी जगह यूज होने लगी है, जैसे कि सर्वर्स पे भी यूज हो रही है, नोड.जेएस, ठीक है। आपने अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ये वेब ब्राउजर्स के लिए था इसका काम। लेकिन अगर आप नोड की बात करेंगे तो सर्वर पे यूज हो सकती है, ठीक है। आपने मोंगोडीबी भी सुना होगा, ये क्या है? डेटाबेस है एक्चुअली आपके लिए, राइट। जो एसक्यूएल डेटाबेस है और मोंगोडीबी है, क्या डिफरेंस है जानते हैं? ऊपरी तौर पे क्या होता है, मतलब क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड है, रिलेशनल डेटाबेस है एक, अगर एसक्यूएल की बात करें। लेकिन मोंगोडीबी में नो एसक्यूएल डेटाबेस है, राइट। की वैल्यू पेयर पे, बेसिकली जेसॉन पे काम करता है, राइट। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मोंगोडीबी की तरफ देखना भी है आंख उठा के, तो पहले जेसॉन को पढ़ेंगे तब जाएंगे वहां। ऐसे नहीं कि पहले मोंगोडीबी में घुस गए फिर जेसॉन बाद में पढ़ लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। तो जेसॉन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। जेसॉन से पहले क्या था, चल रहा है अभी भी, बट जेसॉन को जिसने रिप्लेस किया या ऑल्टरनेटिव बना, एक एक्सएमएल था, राइट।
तो XML लेकिन हैवी होता था काफी, अगर आपको डेटा सेंड करना है दैट वाज वेरी हैवी। उसके बाद JSON आया, राइट। तो ये मैंने डिटेल डिस्कशन किया भी है ऑलरेडी, कुछ वीडियोज मैंने डाली हुई है चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं। वो XML अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पे काम की बातें पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं वो काम की नहीं है, बट वो टाइम ज़्यादा खा जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो बनी हुई है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम सारे ऑब्जेक्ट एक बार जावा स्क्रिप्ट के देखते हैं, जो हमें आपके ब्राउजर में जो भी हो रहा है, ठीक है, या जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको भी आपको एक्सेस करना है या कुछ चेंज करना है आपके ब्राउजर में, कुछ मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले उस सारे एक साथ देख लेते हैं एक डायग्राम बना के। तो डायग्राम में सबसे ऊपर आता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। विंडो जो पूरी है ब्राउजर की वो इसमें आएगी। इसमें एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, जिसको हमने अभी तक यूज किया हर जगह, यानी कि आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखेंगे तब भी काम करेगा। जहां पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा था, समझ रहे हैं क्यों लिख रहे हैं अब हम? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट भी। जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, कोई क्लास होती है एंड क्लास का नेम डॉट कोई फंक्शन यूज करते हैं उसके बाद, या कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं, यही तो करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपका, तो दो पार्ट में दो चीजें होती हैं उसके अंदर, एक डेटा होता है और एक मेथड होता है, ठीक है। डेटा आप एट्रीब्यूट भी जिसको कहते हैं, एंड मेथड फंक्शंस वगैरह जो जो बोल दो, बिहेवियर, ये सब बोल सकते हैं। तो whenever you want to access the data and method, you use object dot data या object dot method, जो भी मेथड के नाम है, और इस तरीके से एक्सेस करते हैं, राइट। तो अगर मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को एक्सेस करना है, तो आई नीड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, कि वो फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का है। तो वो किस ऑब्जेक्ट का है? डॉक्यूमेंट का फंक्शन है वो। गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये सब किसके फंक्शन है? डॉक्यूमेंट के हैं। तो हमने लिखा भी था, जितने हमने अभी तक प्रोग्राम किए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप साथ में विंडो को भी अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल, आपके पास ग्लोबली अवेलेबल है, इसलिए आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तब भी काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? तो ये पार्ट हो गया, ये डॉम का पार्ट है एक्चुअली, ये लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट, और इसके साथ और भी ऑब्जेक्ट होंगे, इसकी एक चेन बन सकती है पूरी की पूरी। और कौन से हैं? अगर मैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करूं, तो विंडो में ब्राउजर वाले पार्ट भी आते हैं। जैसे और क्या क्या हो सकते हैं, ये बने बनाए हैं पहले से, आपको कुछ करना नहीं है, नए बनाने नहीं है। जैसे नेविगेटर, ठीक है। और क्या है? स्क्रीन, लोकेशन, ये सारे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक बार, अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको पता रहेगा बाद में कि ऐसा कुछ होता है, या ये ऑब्जेक्ट होते हैं, और उनके नाम से आप कुछ अगर फंक्शंस फाइंड आउट करना चाहें कि ये काम करना है हमें। आप देखते भी होंगे ब्राउजर पे, जब आप किसी नई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो आपसे लोकेशन मांगता है, राइट। लोकेशन मांगता है ना आपसे, तो इन्हीं के अंदर वो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ऑलरेडी। वो आपको, अगर आप भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहे, बना सकते हैं, ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट की मदद से। फ्रेम्स, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री क्या कर रहा है आपको? जब आप क्रोम पे जाते हैं, बैक का बटन, फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में, है ना, तो ये वो सेव करके रखता है। इसकी हेल्प से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, किस विंडो पे जाना है, कौन सा। जैसे मान लीजिए आपने एक विंडो खोली, पहले यूआरएल डाला, एक ओपन किया, फिर उसको चेंज किया, दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, लेकिन बैक वाला भी सेव रहता है स्टैक में कहीं। स्टैक जैसा समझ, स्टैक वाला बना हुआ है कुछ ऐसा समझो। तो जो सबसे बाद में खोला वो सबसे ऊपर है। अगर आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो ये फंक्शंस आपको हेल्प करेंगे ऐसा कुछ करने में। तो वो हम करेंगे चीजें, बट अभी ओवरव्यू के लिए समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। हिस्ट्री और भी है, ऐसे और भी चीजें हैं हमारे पास। और कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, इनका भी अगर टाइप चेक करेंगे तो आपको पता चलेंगे ये भी ऑब्जेक्ट है। मतलब हर चीज ही ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो हर चीज ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने फंक्शंस बनाए थे कुछ, फंक्शन कैसे बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट में? हम लिखते हैं फंक्शन का नाम ऐसे, और मे बी मैं हाई बोलना चाहता हूं, तो मैं कुछ ऐसा फंक्शन बना रहा हूं, और ये फंक्शन बनाने के साथ मैं यहां पे अलर्ट कर रहा हूं हाई। आप भी ऐसा बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल लेनी है, एक टेक्स्ट फाइल में ऐसा फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी कर लो। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ना करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपने ब्राउजर में जा सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन से हाई, ये कंसोल विंडो है आपके पास, और यहाँ पे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए टेस्टिंग के लिए आपके लिए, अगर यहाँ पे चल गया तो वहां उठा के पेस्ट कर दो, इसको एंटर करें। अभी हमने फंक्शन बना दिया, अब इसे कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉलिंग आप जानते हैं किस तरीके से होती है, ऐसे ऊपर आ गया एन एम्बेडेड पेज एट न्यू टैब वगैरह वगैरह सेज हाई, ऊपर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आपने बनाया। आप चाहें तो इस फंक्शन को बदल के, जैसे फंक्शन से हाई मैंने किया हुआ है और मैं कॉल कर रहा हूं इसको, फंक्शन तो बना हुआ है। ये अलर्ट जो है आपके पास एक ग्लोबल फंक्शन है, आप इस तरीके से एक्चुअली इसको कॉल कर सकते हैं। आपको विंडो डॉट से हाई लिखना है, इसने तब भी कॉल कर दिया। ठीक है, तो जो आपने जैसे ग्लोबली जो भी बनाया आपने वो सारे एक्सेस कर सकते हैं विंडो के थ्रू। सो अभी हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देते हैं। तो सबसे टॉप में है विंडो, इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ रूट ऑब्जेक्ट, और इसके क्या क्या काम है। इट्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो आप विंडो डॉट अगर वेरिएबल का नाम भी लिखेंगे तब भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि विंडो के अंदर है वो, जो भी आपने कोड में वेरिएबल्स बनाए वो सारे उसके अंदर है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है एक आपके लिए। इट रिप्रेजेंट्स सेकंड, ये क्या करता है, पूरी ब्राउजर विंडो को रिप्रेजेंट करता है और कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से, एक ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट है जो कि आप विंडो की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं, और फंक्शंस भी दिए हुए हैं, और उसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको विंडो की हाइट या विड्थ देखनी है तो आप इस तरीके के फंक्शन का इस्तेमाल, इस तरीके के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विंडो डॉट इनर हाइट, और कोई चीज आपको अगर कंसोल पे प्रिंट करानी है, अगर आपको अलर्ट करके देखना है वो भी देख सकते हैं। अगर कंसोल पे करानी है तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं। विंडो डॉट, देखो यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट या फंक्शंस नीचे दिखेंगे आपको, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही है आपको, ये आप अपने ब्राउजर में भी देख सकते हैं। जैसे डेट ऑब्जेक्ट है तो डेट यूज किया, राइट।
और क्या देखना चाह रहे हैं हम, विंडो डॉट इनर हाइट, ऐसे आपको इनर विड्थ मिल जाएगी। तो इस विंडो को, इस पूरी विंडो की हाइट या विड्थ मिल गई हमको। ये ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब कनेक्ट होंगी तो फिर आप समझ पाएंगे क्या हुआ और कहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या? बेसिकली एक एपीआई है जिसकी मदद से आप मैनिपुलेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूं। स्पेसिफिकली हम HTML एंड XML डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक एपीआई है जो कि एक्सेस करती है और मैनिपुलेट करती है डॉक्यूमेंट्स को। एपीआई समझते हैं क्या होता है? एपीआई जानते हैं क्या होता है एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलो ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। कुछ समझाओ, मतलब समझाने के हिसाब से बताओ। ये तो हो गया एग्जाम में लिखने के हिसाब से, ठीक है, कि मार्क्स चाहिए। अब समझाओ। It links two languages which can't talk to each other. Like we can get data from a web server or to our application through API. It usually helps us to get data from other applications. Okay, it usually helps us to get data from some other part of website, मतलब या किसी वेबसाइट से which we can't talk directly, which is in the same language. Okay, so any example? Like we have the API to get like you have the Twitter API to get data from the Twitter. Okay, तो क्या हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते ट्विटर से? Like suppose there are various other APIs. Like suppose we have we want to get data JSON data from any for suppose we want to write a program which automates everything. So we can't take data always like manually. So we will take the API to get the data. Okay, So that we can automate. ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं चीजें। जैसे एपीआई अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो ये समझ लीजिए अगर वेबसाइट है, ठीक है, और आप कॉल करते हैं किसी वही वेब पेज का, वेब पेज डालते हैं यूआरएल पे, तो होता क्या, पूरा वेब पेज आता है। वेब पेज में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। जब हम एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई का मतलब होता है हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं, हमको डेटा चाहिए बस। जब हम ट्विटर एपीआई को कॉल करते हैं तो एक्चुअली हमको सिर्फ डेटा चाहिए होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें HTML में कुछ टैग भी भेजो, ऐसा कुछ कहते हैं कि हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एक सेकंड वेट करो है, मुझे लगता है यहाँ पे दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, हमें वो हड़पनी पड़ेगी।
तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एपीआई के बारे में। एपीआई क्या है? हमको डेटा चाहिए होता है तब एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल एक्सेस करना है, आपको एचटीएमएल पेजेस करने हैं, तो वो तो आप कर ही रहे हैं ना ब्राउजर से। अगर आपको उसमें सिर्फ डेटा चाहिए, जैसे मैं आपको डेटा दिया हुआ है, आपने देखा होगा अगर उस फाइल को खोल के, जो ट्विटर का डेटा दिया हुआ है वो सिर्फ डेटा है। अगर आप उस डेटा को यूज करते हुए इंटरफेस बनाना चाहे तो बना सकते हैं अच्छा सा, जैसे ट्विटर पे आप देखते ही हैं। ठीक है, आपकी फोटो भी आएगी साथ में और अदर डिटेल्स भी आएंगी, एक बढ़िया सी एक विंडो बनी हुई आएगी जिसमें आपका ट्वीट होगा, तो सारी चीजें होती हैं। पर डेटा में तो उनकी जरूरत नहीं ना, तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा वो डेटा लेना। हाँ हाँ, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इधर देखो अभी, जैसे आपको और बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। डॉक्यूमेंट, थोड़ा इंतजार करो बाकी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। आज इनकी मतलब लैब की ले लो हो गया। हाँ लैब मैं वही करता हूँ। तो मेरे नाम ठीक है ना? ठीक है, आप नाम नोट कर लो। बच्चों एक काम करेंगे आप लोग, इनसे लिंक ले लीजिएगा बच्चों से, ठीक है, जो आपको ज्वाइन करना है। ये बच्चे ना, क्योंकि मैं इसके थ्रू ऑनलाइन भी चल रही है क्लास। अच्छा। और यहाँ पे चल रही, तो मैं टीम्स के थ्रू लिंक भेज देता हूँ, तो इनको भेज देंगे। कब तक होगा? 5 बजे तक, बस ठीक। ये कंफर्म कर लिया था मेरा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट आपका सब्जेक्ट है, आगे बॉडी, क्योंकि बॉडी एचटीएमएल पेज है तो बॉडी होगी उसमें एक टैग, राइट। उसके बाद अगर उसमें कोई भी स्टाइल चेंज करनी है, ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर इसके आगे का पार्ट है। अगर कोई और स्टाइल भी चेंज करनी है, यहाँ पे लिखेंगे आप। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, और उसमें आप कलर दे सकते हैं। ये CSS एक्चुअली आप चेंज कर रहे हैं, तो जैसे रेड दिया आपने, तो इसको साथ साथ में चेक भी करते रहेंगे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। अब स्टाइल का जब हम इतना एंटर करके चेक करते हैं पहले क्या क्या इसके अंदर है, आपको देखो बहुत सारी चीजें मिल रही है नीचे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मिल रही है इसकी बॉडी की, तो बैकग्राउंड कलर और ये अलाइन वगैरह सब बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको इनको बदलना है तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, इतना हमारे पास है। इसको रेड करके देखते हैं एक बार, चेंज हो गया। ठीक है, तो इमेज वगैरह अगर आपको यहाँ पे फिट करनी है, अभी कुछ है क्या? अभी कुछ भी नहीं है।
हाँ गूगल इमेज है। इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। वाइट ठीक है। अगर आप कुछ और चीजें चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए अभी सर्च कुछ भी नहीं किया हमने, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये देखो ये बटन का कोड है, सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स का कोड है, ये जितना भी दिख रहा है आपको। इसको कुछ आईडी दिख रही है आपको, इनपुट दिख रही है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, डॉक्यूमेंट, चाहे तो आप विंडो भी लगा लीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इससे आपको एक एलिमेंट मिलेगा इनपुट नाम का, उसको आप मे बी टेक्स्ट या टी नाम से सेव कर लीजिए। अच्छा आया नहीं कुछ भी, विंडो हटा के देखें, अभी भी नहीं आया। डबल कोट्स की यहाँ बात कर रहे हो आप, तो फर्क नहीं पड़ता इससे। इनपुट आईडी, एक बार इनपुट रैपर वाली आईडी यूज करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ गड़बड़ है क्या? रिफ्रेश डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नल आ रहा है। एक्चुअली गूगल का पेज ओपन नहीं था डायरेक्टली, अभी मैंने google.com ओपन किया है, तो इसकी आईडी कोई है क्या? इसकी एक क्लास है ये वाली, और डिव की क्लास है, नेम भी है इसका, एक नेम क्यू है, ठीक है। तो नेम से निकाल लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर क्यू के नेम से, और एक नोड लिस्ट है, तो यू कैन यूज इंडेक्सिंग, तो 0 आ गया आपके पास, और इसको आप टी में सेव कर लीजिए। अब अगर आप इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं, टेक्स्ट कंटेंट क्या है इसका भी नल है, अगर कुछ और डालना चाहते हैं मे बी जावा स्क्रिप्ट, बट इसके अंदर चेंज नहीं हुआ, ओके ठीक है। इनर टेक्स्ट भी चेंज नहीं हुआ, सर टी डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स है तो हम वैल्यू लिखेंगे, इससे चेंज करके देखते हैं। अब हो गया चेंज, ठीक है ये वाला। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं ऑटोमेट करने वाले। अगर आपको बहुत सारी क्वेरी सर्च करवानी है तो ऐसे आप गूगल सर्च के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसको भी इंस्पेक्ट करके आप चेक कर लीजिए। तो इसकी क्लास या कोई आईडी दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, बट ये क्लास ये है इसकी। तो पहले काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम सर्च करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कितने ऐसे एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो दोनों यही है, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी। दूसरा वाला भी नहीं, ये अलग है। तो इसमें से पहले
जीरो वाला चेक कर लेते हैं, यही वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं कौन सा है, दोनों यही है। फर्स्ट वाला कौन सा है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है हमें, और सेम है एग्जैक्टली, या मे बी इसमें दो बटन हो। तो ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट वाला लेते हैं फिलहाल, तो इसको बी नाम से सेव कर सकते हैं आप, एंड बी डॉट क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद बी डॉट पे अगर क्लिक करना है आपको कोई बटन, तो क्या कर सकते हैं क्लिक करने के लिए, बी डॉट क्लिक। यस सर। हुआ नहीं बटी, बी डॉट फंक्शन होता है ना सर, बी डॉट क्लिक उसके आगे पैरेंथेसिस। हाँ ठीक है। तो ये ऑटोमेट इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। सारी बात समझ में? तो अभी तक क्या क्या कर लिया हमने? अभी तक हमने एक काम कर लिया। बच्चों शांत रहो, आपको पास लिंक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, तब तक जो मैंने अभी किया ये ट्राई करो आप। आपको क्या करना है, कोई भी वेब पेज ले लो, गूगल ले लो या कोई और ले लो, कोई दूसरा ब्राउजर सर्च करो, सॉरी ब्राउजर नहीं, कोई दूसरा सर्च इंजन देखो, याहू देख सकते हैं आप, डक डक गो देख सकते हैं, कोई भी ट्राई कीजिए, ओपन कीजिए, उसमें एक स्क्रिप्ट बनाओ छोटी सी। ठीक है, आप एक क्वेरी लिखो, क्वेरी ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जानी चाहिए और बटन क्लिक होना चाहिए, और उसके बाद कुछ पेजेस ओपन हो जाने चाहिए जो सर्च करने के बाद आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो बाकी पेजेस होंगे, जैसे ये पेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पेज में कुछ लिंक्स है राइट, जैसे यहाँ पे देखो ये लिंक है एक, फिर ये लिंक है एक, ये लिंक है, तो जितने लिंक होंगे उस पेज में वो सारे सेव करने एक पेज में। आज का ये काम है अभी के लिए, तो ट्राई करो, इतना ट्राई करो तब तक।
ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेरी किसी की? नो क्वेरी?
बच्चों क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आ गया समझ में कि नहीं आया? एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, ठीक है। हमारे पास अभी हमने क्या किया है, सिर्फ देखते रहो ध्यान से, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है एरे के अंदर, वो एक एक करके पिक करनी है, उनको सर्च करना है, बटन पे क्लिक करना है, जो आएगा उसके लिंक्स हमें निकालने हैं। तो कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे आप आगे बढ़ गए दूसरे पेज पे, अभी जैसे मैं इस पेज पे हूँ, तो आपको वापस किस पे आना पड़ेगा? गूगल पे वापस आना पड़ेगा, google.com पे। यहाँ पे अगर यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मान लीजिए अगर आपको google.com पे वापस आना है तो आप क्या करेंगे? लोकेशन, लोकेशन एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको खोल के देखो क्या है उसके अंदर। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप? इसके अंदर बहुत, ये ऑब्जेक्ट है ना, एंसेस्टर, ओरिजिन, फिर HREF, फिर ओरिजिन, फिर प्रोटोकॉल। ओरिजिन क्या बता रहा है? जो इसमें ओरिजिन है, किस पेज से आए हम। जब भी लोकेशन वाला आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें एक बैक वाला आपको बताएगा कि कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसका लिंक चेंज करना है आपको तो क्या करेंगे? लोकेशन डॉट, इनमें से कौन सी चीजें जो लोकेशन बता रही है इस पेज की, इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एट्रीब्यूट है जो ये बता रहा है कि इस पेज का URL क्या है अभी? किसी ने बोला कुछ? बोलो, फिर से बोलो। ओरिजिन नहीं बच्चे, ओरिजिन तो ये बता रहा है कि हम कहां से आए, href बताएगा, राइट। तो अगर आप href चेक करेंगे तो href से ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पेज का URL क्या है। अगर मैं ये बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना है? ऐसे लिख दो बस, करना कुछ नहीं है खास। वापस google.com पे जाना है तो google.com लिखो। अच्छा, ये हो गया चेंज। कौन सा? जो उस पेज में है सारे, जो उस पेज में है, तो आपको टेक्स्ट तो पूरा मिल गया ना, पेज का सोर्स मिल गया। अब आप जैसे मैंने क्या किया था, देखो ये मैं आपसे पूछता हूँ पहले, अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे एक पेज ओपन हो गया मेरा पूरा का पूरा, उसमें जितने लिंक है वो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? जितना अभी तक यूज किया ना उसमें से कुछ लगेगा उसमें। गेट एलिमेंट बाय आईडी तो नहीं लगा सकते आप, टैग लगा सकते हो। सर टैग नेम सारे के सारे एंकर टैग हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इटरेट करके सबके लिंक प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पहले दूसरे पेज पे जाते हैं एक बार, जैसे JS लिखा था तो दूसरे पेज पे गए। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करेंगे आप, और टैग क्या है हमारे पास? टैग कौन सा होता है जिसके अंदर हमारे पास लिंक होते हैं? वो कौन सा टैग होता है? ए टैग होता है। ए टैग होता है तो ए कर दिया आपने। ये बहुत सारे आगे देखो, इसको आप किसी एक लिंक्स नाम से सेव भी कर लो। लिंक्स की अगर आप लेंथ चेक करना चाहते हैं तो ये 445 है, और लिंक्स में मैं आपको 0 वाला बता देता हूँ ट्राई करके, ये 0 वाला आया। अब देखो 0th में क्या क्या है, ए वगैरह वगैरह, और कहीं दिख रहा है आपको इसमें कि अच्छा इसमें href नहीं है कहीं शायद से, पर एक बार चेक करते हैं href, क्या पता मिले हमें। तो href इसका ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो जो ब्लैंक होंगे उनको आप डिस्कार्ड कर देना। चेक कर सकते हैं इफ एल्स लगा के कि ब्लैंक है कि नहीं है, या उसकी जो भी आ रहा है href से, जैसे ये देखो क्या आया, स्ट्रिंग आई पूरी की पूरी, इसकी लेंथ चेक कर लो कितनी आई, तो खत्म, जरूरत ही नहीं उसकी। अब किसी और पे ट्राई कर लेते हैं, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वही चाहिए हमें। तो मैं 1 वाला देखता हूँ, ये आ रहा है कुछ, तो इसका लिंक देख लो क्या है, ये आ गया।
हो गया आपका काम। तो ये वाला लिंक है इसके अंदर, पहला वाला कहीं ऐसे आप एक और लिंक देखेंगे, सेकंड वाला ये भी खाली है, थर्ड देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारे उठाने एक एक करके इनको सेव करना है। तो कर लेंगे बच्चों इतना काम। आगे बात समझ में क्या क्या हुआ अभी तक? ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन बना के लिख लेता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन तो आपके साथ शेयर हो रही है, क्वेश्चन बना के लिख लेता हूँ। आप तब तक करते रहो, जिसको कोई डाउट होगा इन क्वेरीज पे देख लेना कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, अगर कोई डाउट है किसी को तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा शायद से। क्या स्टेप्स फॉलो करने ये मैं लिख रहा हूँ। देखो टास्क तो ये जो सामने लिखा हुआ है, लास्ट स्टेप ये समझ लीजिए कि मैंने लिखा है सेव देम टू एन ऑब्जेक्ट और फाइल। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है,
फाइल सेव करने का देख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो अभी इस पार्ट के लिए हम ऑफ कर देते हैं रिकॉर्डिंग, इसमें अभी आपका काम है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें तो पूछ सकता है।